So we had an interesting class last time. Did anybody get a chance to revise it? Yeah, shaking their heads. You had enough time to Yes, revise. Didi. Yeah. Any questions from the last class? Anything that you didn't understand? Yeah, Shalini. So दीदी, it's not about understanding, but I was wondering कि आपने बोला जैसे प्रोजनी डिफिकल्ट थी और इसलिए भी क्योंकि पुरुषार्थ उनका ऊपर की तरफ बह रहा था, तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी प्रोक्रिएशन की. बट फिर और एंड दे वर वेरी क्लोज टू संन्यास बिकॉज उन्होंने इंद्रियों पे, सॉरी आप कुछ बोल, बोलो. काबू कर लिया था. तो फिर उनको why did they have to, why did they do all the tapasya to have a progeny then? That was my only. राज्य है ना बेटा, राजधर्म पूरा करेंगे ना. जब हमारे पास राज्य रहता है, हम सन्यासी नहीं है, राज्य रहता है, तो राज्य का, राजधर्म का एक पोर्शन है कि आप एक उत्तराधिकारी छोड़ के जाएं. तो इसलिए उत्तराधिकारी भी ऊपर से आया, फिजिकल प्रोजेनी नहीं है. किसी काफी जेनरेशंस में अगर आप कहानियां पढ़ेंगे तो फिजिकल प्रोजेनी नहीं है. ये यज्ञ की वजह से, हवन की वजह से, तपस्या की वजह से कोई बूंद मिले तो प्रोजेनी ऊपर से ही आ रही. पूरी मतलब 3, 4, 5 जितनी कहानियां हमें देखने मिलती हैं, उतनी सारी कहानियों में ऐसा ही है. राज्य धर्म की वजह से, क्योंकि आपके राज्य में जितने लोग हैं वो आपके ऊपर आश्रित हैं. दे आर डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू हैव टू गिव. दे कैन नॉट raise their level to not have progeny, and their children should be taken care of, so you must give them an उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी बहुत जरूरी. मोदी जी के बाद कौन? एक तो चलो चल गया, फिर दूसरा अगर नहीं रहेंगे, वो सन्यासी हैं, नहीं रहेंगे तो दिक्कत है. इसलिए कोई व्यासपीठ होती है, कोई गद्दी होती है, तो उसमें भी जब जहां पर सन्यासी होते हैं वहां पर भी उत्तराधिकारी रखना जरूरी. तो ये ऑलमोस्ट गद्दी ही हो गई, सन्यासियों की ही गद्दी है जो वंशों वंश चली आ रही है. उत्तराधिकारी भी ऐसे मानस पुत्र ही हैं सारे. मेक सेंस? हाँ दीदी, थैंक. एनी अदर क्वेश्चन? I don't have a question, but मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी. When you said, with in so when I think so, Devki asked Krishna Bhagwan, why were you away from me for 14 years? तो basically उनका जवाब कुछ ऐसा था कि there were checks and balances, right? तो basically कैकेयी माता kept Ram Bhagwan away from Kaushalya Mata for 14 years. So this was a checks and balances in place, जहाँ पे आपको 14 साल अलग रहना पड़ा, and Yashoda Mata got me for 14 years. So it was a lovely concept for me that, I mean, it's transcending across generations, times, and it gives us a story as well, right? एक learning भी मिल गई इधर. So that was interesting for me. I don't think I discussed it, but it's a nice take. Yeah. Maybe you heard it somewhere else. Good learning. I mixed it, sorry. No worries. Okay, so what did you remember from the class? Let's start with Neha. What stayed with you, beta? कुछ रिवाइज किया है? नहीं किया है? आज भी छुट्टी हाँ चाहिए? दीदी, अभी no. So, Didi, what I could understand from the last class was that the very first thing that Bhakt doesn't need anything, and listening to their stories, we get inspired to live a minimalistic life. So that's what they teach us. Their stories teach us,
And also the other thing, very important thing that I understood was that your lineage plays a very important role of how you know, turn out to be. So, and I guess Ramji's lineage was a very superior one, and that's the reason why, you know, Illustrious, very your illustrious. qualities, yeah, and all the qualities that one gets is actually transferred down from lineage to lineage. So that's the another thing that I learned. Yes, So these were the two excellent, takeaways. excellent takeaway. Well, we talk about that in our classes also, right? When I do the Hmm. energy classes, that is the very first thing I talk about. कुछ भी हम साधना करने जाते हैं, वो हमारे अकेले का काम नहीं है, वो generations ने तपस्या की है, तब हम थोड़ी सी कर सकते हैं. Yeah, so that is something which is very important to remember. और कभी-कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए. I think this is also very important to remember कि अगर आपको लगता है कि कभी एक तरफ की lineage थोड़ी हल्की पड़ गई है, तो अपने मन में कोई इसके बारे में दुख नहीं रखना चाहिए. यही रामायण की कहानी आपको बताती है. एक तरफ कैकेयी थी. उनके पिताजी ने जब कैकेयी के साथ राजा दशरथ ने शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा, तो महारानी कैकेयी के राजकुमारी कैकेयी के पिताजी ने उनसे एक वचन लिया. महाराजा दशरथ का वचन बहुत उस समय भी बहुत फेमस था कि प्राण जाए. रघुकुल का ही वचन, वो राजा हरिश्चंद्र की टाइम से चला आ रहा था कि अगर आपने वचन दे दिया है तो कुछ भी वचन पालन के लिए आप प्राण तक छोड़ सकते. तो जो महारानी राजकुमारी कैकेयी के पिताजी थे, कैकेयी राज थे, उन्होंने ये वचन मांगा कि एक तो जो कैकेयी होंगी, उनको पटरानी का स्टेटस मिलेगा. और हमने रामायण में हमेशा पढ़ा है कि महाराजा दशरथ कैकेयी को हमेशा ज्यादा फेवर करते हैं, माता को ज्यादा फेवर करते हैं. दूसरा उन्होंने वचन मांगा कि जो पुत्र महारानी कैकेयी से प्राप्त होएगा, वो ही पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा. ये उन्होंने दूसरा वचन मांगा. अब इसमें सोचने वाली बात ये तो कहा महाराज दशरथ और उनकी lineage, और अब आप देख रहे हैं you are getting a window into the lineage of माता कैकेयी. Yes, small little window. मतलब थोड़ा सा greed भी दिख रही है हमें, थोड़ी दिख रही है कि हमको power hungry भी हैं हम, हल्का हल्का सा दिख रहा है, थोड़ा सा window into it. lineage में है. और माता कैकेयी उसको काफी हद तक खत्म कर पाई. राम जी हुए, राम जी was her favorite son and ने एक क्षण के लिए रह गया. कुछ एक दिन 2 दिन जो रहे होंगे वो क्रूशियल उनकी lineage थोड़ा सा जोर मार गई. पर अब माता कैकेयी की भी कहानी इंटरेस्टिंग है. You don't know the story. Do you know the story of माता कैकेयी? माता कैकेयी की जो माता थी, उन्होंने she was relinquished by her husband. उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था. उनका त्याग क्यों किया था? जब बच्चे छोटे ही थे तभी त्याग कर दिया कि एक बार उनकी कुछ कॉन्वर्सेशन या चल रही थी और राजा
जो केकई राज थे, उन्होंने कुछ बताने से मना कर दिया। बोले अगर मैं ये बताऊंगा तो ये रहस्य मैं खोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसमें मुझे श्राप मिला हुआ है कि अगर ये बताऊंगा किसी को तो मेरे प्राण चले जाएं। तो केकई माता की माता अड़ गई कि नहीं, आप और मैं एक ही हैं, वी आर वन ओनली एंड यू हैव टू टेल मी। ओ, केकई राज ने बोला कैसी क्रूड औरत है कि इसको अपने पति के प्राण जाने की चिंता नहीं है और फिर भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। ऐसा स्वभाव था तो इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर। सो दिस इज द मदर ऑफ केकई। तो अब ये दोनों तरफ से आप देख रहे हैं, पिताजी ग्रीडी हैं थोड़े से और माताजी बहुत सेल्फिश है। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे को पता होना चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ ना, ईगो बहुत ज्यादा है। तो अब ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि ये लिनिएज आई और बहुत हद तक माता केकई ने उसको निगेट कर दिया, पर अल्टीमेटली वो लिनिएज थोड़ा सा जोर मार गया। दूसरी तरफ जब भरत हुए, एक तो वो मानस पुत्र है ना, फिर भी फिर भी जो रघुवंश रघुवंशी है ना, तो लिनिएज कौन सी मानी जाएगी? इस तरफ से तो रघुवंशी ही है ना। तो इतना सब होने के बावजूद उनको एकमात्र इतना सा भी लोभ नहीं है। लोभ बताया उन्होंने, जब गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि तुम्हें कोई डिजायर नहीं है क्या, तुम्हें सत्ता का लोभ नहीं है ना, पद का लोभ नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। कैसे कैसे नहीं है? एक नहीं, दो पदों का लोभ। दो पद का लोभ है गुरुजी मुझे। जहां मुझे दो मिल रहे हो, मैं एक का क्या करूंगा? मैं तो बहुत लोभी आदमी हूँ। तो कभी ऐसा नहीं सोचना, अपना मन कभी इस तरफ से, बच्चों के लिए जब बच्चे हो जाते हैं तो आदमी मन खराब कर लेता है। मन इस तरफ से खराब मत करना कि संस्कार शायद दूसरी तरफ से अच्छे ना आए हो। एक तरफ के संस्कार ही बहुत हैं और आदमी का अपना कर्म ही, अगर बच्चे को सिर्फ कर्म ठीक करा दोगे तो उतना भी बहुत है। यू कैन राइज अबव अ लॉट इन वन जनरेशन ओनली। बहुत चल, माता केकई बहुत ऊपर उठी पर थोड़ा सा रह गया। भरत तो उतना भी कुछ भी कलंक का नाम का कुछ भी नहीं उनके पास। उन्होंने तो कितना पश्चाताप किया, 4 जनरेशन का पश्चाताप तो भरत ने किया। दूसरी तरफ के भी सारे कलंक धो दिए होंगे। मेक सेंस? डू यू अंडरस्टैंड? So you are absolutely right. Lineage is so very important, very very important. But अगर धर्म के मार्ग पे हम चल रहे हैं और थोड़ा सा भी एक तरफ भी किसी ने धर्म किया है, तो बिल्कुल पूरी गुंजाइश है कि बच्चे ठीक रहें, उसमें अपना मन दुखी मत कर। और अगर किसी बच्चे में कोई गुण दिखने लगे दूसरी तरफ का, तो उसको सोच के दुखी मत होना, उसको पॉजिटिवली लो और पॉजिटिवली चलाओ। हर हर एप्टीट्यूड, हर एटीट्यूड, हर कॉम्पिटेंसी को आप पॉजिटिवली ले सकते। जब शिव जी की बारात का वर्णन किया है ये तुलसी रामायण में, शिव जी की बारात का भी वर्णन किया है। बहुत सुंदर वर्णन है। और वो कॉन्वर्सेशन जो शिव जी की है, अपने जो उनको सजाने के लिए लोग आते हैं, तो अब वो तो आपको तो पता है, सबको कहानी तो पता ही है जनरली। वो गए तो सांप और सारे विभूति से लिपट के, और सांप और चर्म छाल, और ये मतलब ये सब उनका आभूषण था, दो दूल्हे बन के गए थे ऐसे। और जब वो सजा रहे थे तो एक एक चीज जो भगवान ने बोली कि मुझे इसी से सजा दो,
और उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दिया क्यों, कि ये सर्प क्यों डाल दो तुम अपने सर में, गले में, है ना, हाथों में तुम सर्प क्यों डाल दो, उन्होंने जस्टिफाई, ये तो इस वजह से। गलत का भी सही जस्टिफिकेशन भगवान बहुत सुंदर देते हैं। ये चीज आप शिव जी से ये कॉन्वर्सेशन बड़े ध्यान से सुनिए, कि कभी कोई गलती भी हो जाए किसी से, उसको पॉजिटिवली कैसे लेना है और उसको डायरेक्ट कैसे करना है पॉजिटिवली। बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन है। व्हेन आई गेट टू दैट पॉइंट which will be in 5-6 months, you must listen to it carefully. Yeah. All right. Tanya, you had a revision, darling? Busy? Back to Mumbai? नमस्ते दीदी। नहीं दीदी करा, बैक टू ऑफिस एंड करा दीदी, रिवीजन करा, क्योंकि वो 2 क्लासेस आई थिंक का गैप हो गया था, तो रिवीजन तो हो गया अच्छे से। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग एडिंग ऑन टू द लीनिएज पार्ट व्हिच यू सेड दैट व्हाइल you were telling about the story, there are 2 important aspects, one about their close connection with um, Indra Devta and second about the progeny. तो इंद्र देवता का वो जो आपने बोला है कि बड़ी अच्छी लर्निंग है वहां पे भी, कि वंस यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस तब तो अपवर्ड ही अपवर्ड मूवमेंट है. सो आई थिंक दैट, एंड आई केप्ट लुकिंग एट thinking about my lineage personally, that because I remember even in the energy class, that was the first thing that you asked us to go back and think, and I was thinking ki, so yes, I could relate to certain things ki जैसे बड़ी छोटी सी बात है, the whole idea of just the idea of doing hard work and going at it again and again and again. I think that also comes from my lineage. I have seen it with my Dadaji working still at the age of 90. Like, he would not sit idle only. My dad, no matter how bad he's feeling, but he still wants to work. Pata nahi, matlab, ek main wo soch rahi thi. And then at the same point, I was looking at the other people in my office who come from a very strong lineage. Like, there are 2 guys at a very senior position who come from the whole Tamil Brahmin family and all. पर मैं उनको देख रही थी कि दे आर वेरी स्वीट, लाइक नो मैलिस, एंड यू कैन सी दैट दे आर लाइक ब्यूटीफुल सोल्स, बट डिसिप्लिन नहीं है। जैसे मतलब कि खाने का शौक, ऑफ कोर्स बिकॉज ब्राह्मण फैमिली तो खाने का शौक रहेगा नहीं। तो मैं ना ऐसे ही मन में सोच रही थी, मैंने कहा दे आर सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ पावरफुल लीनिएज, कि थोड़ी सी मेहनत करनी है इनको, एंड rise above everything, and I don't know from where we come, and I don't even know if there is anybody in my family or generations who has been able to, who was this close to spirituality, or in their own ways I'm sure they must have done, and that's why I chose that lineage. तो मैं एक वो सोच रही थी। और एक सेकंड बड़ी अच्छी स्टोरी जो आपने एंड में वो जो महाराज दशरथ के दास की सुनाई थी आपने, कि बस एक ही धर्म उसने पकड़ा. So that was, I was also thinking that it's a very small example, that my maid, no matter how difficult her life is, whatever, she'll make sure that every Monday she will fast and she will not eat the entire day, no matter how sick she is feeling, whatever is happening. If Saturday is also a fast, Sunday she'll make sure. तो मैं सोच रही थी कि एक ही धर्म पकड़ा हुआ है उसने. That's all that she does. I mean, which is also so beautiful, that sometimes we feel that we are so blessed that we are trying to understand all this process and trying to rise above our limitations. But किसी ने एक धर्म भी पकड़ा हुआ है और वो उसी को भी एकदम ऐसे to the T, if somebody is following, that is also so commendable, and such a, like, that's what dharma is all about, that you follow something, you show up, and then you constantly do it, no matter how, like, the circumstances can be so, like, non-supportive, but still you can do that. So yeah, I think it was. नहीं, धर्म हम वर्ड तो बहुत सुनते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है और उसको करना तो और भी मुश्किल है ना। अब अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि जैसे वृंदा हुई या मंदोदरी, क्या मतलब, मंदोदरी की कहानी पता है आपको? मंदोदरी जो फाइनली, सबको पता है ना, रावण को मारना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि कहाँ पर मारा था तीर भगवान ने? कहाँ मारा था, है ना? उनकी धुन पे मारा था। किस पे मारा था? their belly button, right? बेली बटन, या नाभि पे मारा था। नाभि पे क्यों मारा था? अमृत का डिपॉजिट था वहां अमृत पर। कलश था,
रावण के पास अमृत कहाँ से आया? मंदोदरी लेके आई थी उनके लिए। कहाँ से आया? वो स्वर्ग से मंदोदरी लेके आई थी, चंद्रलोक से स्वर्ग गई, स्वर्ग से मंदोदरी लेके। कैसे? मंदोदरी को वो कलश हिडन था, है ना, will only be revealed to somebody who, जैसे अभी मैंने दास की कहानी बताई ना, वैसे ही वो कलश भी हिडन था और उसी को मिल सकता था जिसने धर्म का पालन किया। तो मंदोदरी ने अपने पतिव्रत धर्म का इतना अच्छा पालन किया कि मंदोदरी को अमृत कलश मिल गया। सो यू नो, धर्म तो ठीक, हमने समझ लिया धर्म। अब तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी समझ में आ रही होगी, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। It is something to experience and appreciate and understand. मगर उसका पालन करना और विपरीत स्थिति में भी उसका पालन कर, it doesn't matter who you're married to, doesn't matter who your child is, doesn't matter who your boss is, doesn't matter who your teacher is. Remember Vairagvati? Doesn't matter, so many stories. It doesn't matter, आप अपने धर्म का पालन, and that sets you apart. तो विपरीत परिस्थिति, तो ये तो आप अपनी मेड की कहानी बता रहे हो तो बहुत ब्यूटीफुल है, मगर हमारे पास और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स। धर्म पारायण मतलब बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू simple, if you just decide to wake up in the morning and look at your hands, है ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर पूर्णे स्थिता गौरी प्रातः कर दर्शनम खाली। या तो चरण धरती पे छूने से पहले अगर हमने याद कर लिया माता को, इतना ही धर्म बना ले अपना, इतना ही रोज करें, इतना ही, बस इतना। एक एक करके उसमें जोड़ सकते हैं, एक ही पूरा करना मुश्किल होता है, एक एक करके उसमें जोड़ सकते। तो राजा दशरथ तो कभी बनेंगे, कभी बन नहीं सकते, है ना। अपनी तो कहीं भी कुछ भी मुश्किल है, मगर थोड़ा थोड़ा सा, तो नॉट नॉट मंडे फास्ट, जस्ट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। धर्म पालन करना सीखने के लिए बहुत छोटी सी चीज का, छोटी चीज लो, बिल्कुल छोटी सी चीज। उपवास भी बहुत बड़ी चीज हो गई, आगे पीछे छुटवा देता है भगवान। और छोटी लो जिससे कि भगवान नहीं छुटवा पाए, है ना। संकल्प तो लेना ही मत, कोशिश ही करना। वेरी नाइस टेक अवे। शालिनी थॉट्स? दीदी अच्छी वेरी लगती है, सिमिलर। बिंदी रोज लगाया कर। ठीक है दीदी, वेरी नहीं नहीं, सिमिलर। तानिया तुम तो रोज ही लगाते हो। मेरे को बोल बोलती आप मेरे को कैसे बोल दीदी? माय फर्स्ट टेक अवे तो गुरु के साथ जो आचरण वाली बात आपने बोली कि हम लोगों को आचरण करना नहीं आता, एंड वी वो तो आस्क। टेक अवे हो गया, वो तो कब की रो भी ली उसके लिए हो। आई नो, बट किया था हमने लास्ट टाइम, वी बीन डूइंग दैट, रिविजिटिंग इट। एंड देन ऑफ कोर्स लीनिएज वाली बात, तो उससे मुझे वो याद आया कि कैसे पहले इनफैक्ट मजाक उड़ाते थे कि पहले लोग जब शादी के लिए ढूंढते थे तो वो सिर्फ खानदान देखते थे, कभी कभी लड़का लड़की भी नहीं मिलते थे। हमारी फैमिली में भी I've heard कि राजेश ताऊजी and ताईजी never met, and they met first time on the first night, and because bus his grandfather and all, they decided, they saw the family, so the individual was not important, because they actually I think they gave a lot of importance to what came in the lineage, and individual तो फिर ठीक ही होगा. So
I was just remembering that. But of course this whole lineage thing आपने पिछली बार गीता क्लास में भी हमें समझाया कि क्यों वो अपयश और इनफैमी क्यों इम्पोर्टेंट है अर्जुन के लिए और क्यों भगवान बार बार बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अर्जुन इंडिविजुअली बट इट्स द इंटायर लीनेज, ऑल द पीपल कनेक्टेड टू हिम. सो ऐसे ही राम जी का कंडक्ट, उनके भाइयों का कंडक्ट समझने के लिए कैसे अगर हम लीनेज के बारे में जानेंगे तो हमें समझ आएगा कि स्टोरी में कि उनका कंडक्ट ऐसा क्यों है. तो दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस. Because see, story everybody knows. Story is not difficult. But why the story is the way it is and why the conduct is the way it is. We can't even appreciate the finer nuances because we don't have the ability to see only how this is important. वो तो डेवलप करना पड़ेगा ना, क्या देखने वाली चीज है उसमें, हमें डेवलप करना पड़ेगा. हाँ दीदी, बिकॉज ये तो कभी भी सोचा भी नहीं कि पूरी लीनेज के बारे में कि एंड इंद्र का कनेक्शन एंड ऑल ऑफ दिस, ये कभी भी इस एंगल से कितने सारे नए नए एंगल आपने हमें गिवन टू अस. चलो वो तो ठीक है, वो तो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, बट जनरली जो भाव की बात है ना बेटा, तो I keep engaging you intellectually so that you learn how to keep your जो मन है उसको कैसे लगाएं उसमें. क्योंकि जो बुद्धि है, जो विचार है, जो माइंड है, माइंड कीप्स चेंजिंग. एक ही प्रवृत्ति है माइंड की, उससे वो हट नहीं सकता. क्या है बेटा पहला सूत्र योगा सूत्र का, तान्या? सबसे फर्स्ट अथा योगा अनुशासनम, आगे योगः चित्तवृत्ति निरोधः. चित्त में वृत्ति होती ही रहती है. जो माइंड है इसका कांस्टेंट कैरेक्टर चेंजिंग है. इट हैज always been and will always continuously change. Now it will always change. अगर कहीं पर स्थिरता आ सकती है वो सिर्फ मन में आ सकती है. तो कोशिश यही रहती है कि दिमाग के जरिए ये चेंजिंग माइंड के थ्रू हम मन में उतर जाएं तो बात बनेगी. So continuously hitting at the same target with different angles, where are we trying to get to? We're trying to मन में आपके मन के अंदर थोड़ा सा अगर अनुराग पैदा हो जाए, राग नहीं, अनुराग. अनुराग मतलब, राग मतलब हिना, राग का मतलब क्या होता है बेटा? No, राग का मतलब अटैचमेंट. किसी चीज से अटैचमेंट, किसी चीज का डिजायर, किसी चीज की चाहत, उसको राग बोलते हैं. राग और द्वेष हमारी एनिमीज है ना. राग मतलब अटैचमेंट एंड द्वेष मतलब किसी से नफरत, है ना. द्वेष तो पता है ना, इतनी हिंदी तो जानते होगे. राग मतलब अटैचमेंट और द्वेष मतलब नफरत. ये तो एनिमीज है हमारे. क्या है बेटा? ये क्लेशाएं हैं. कौन से क्लेश है? राग और द्वेष. और तान्या? अविद्या, अस्मिता, वेशा. भिन्निवेशा. 5 क्लेश हैं बेटा. 5 enemies of human existence. What are the 5 enemies? Avidya, ignorance. We don't know, right? Slowly we are in the process of learning. We don't know. Second, attachment. Avidya, अस्मिता. अस्मिता, ego.
ego, the feeling of I am, अस्मिता. And then attachment, rag or dvesh. Or last is fear, abhinivesha, fear. So ये problems हैं human existence की. जब इनसे ऊपर उठ जाते हैं तो ये problems से ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं. अगर इन सबको छोड़ देंगे तो भगवान मिल जाएगा. या समाधि मिल जाएगी, या योगा हो जाएगा, या जो भी, whatever you want to call it, निर्वाण, whatever. So rag is an enemy. Anurag, अनुराग क्या? अनुराग का मतलब Detachment. Attachment to God. attachment to the one that is unchanging. राग की जगह अगर अनुराग हो जाए, बिकॉज राग तो हमें किससे होता है, डिजायर किसकी होती है, अटैचमेंट किससे होता है, एवरीथिंग दैट इज चेंजिंग, राइट? चेंजिंग एज इन, से किसी आदमी से प्यार हुआ, माता से प्यार हुआ, पति से प्यार हुआ, बच्चे से प्यार, ये सब चेंज होते रहते हैं, ये अनचेंजिंग नहीं है, आएंगे जाएंगे. और भी हमें तो छोटी छोटी चीजों से प्यार हो जाता है, कभी पेन से प्यार हो जाता है, कभी नोटबुक से प्यार हो जाता है, कभी कंप्यूटर से प्यार हो जाता है. वी हैव वेरी स्मॉल डिजायर्स एंड वेरी स्मॉल अटैचमेंट्स, एंड दीज फॉर श्योर आर चेंजिंग. इन्हें, माता को तो बूढ़ा होने में 60 साल लगेंगे, लैपटॉप तो आपका 1 साल में खत्म, नया लेने की जरूरत पड़ जाएगी. प्यार करने का क्या फायदा है उससे? तो इसलिए व्हेन यू get attached to something which is unchanging, it is called anurag. Make sense? So then in your entire being, which is always changing, because mind is always changing, and heart is also always changing with the rag. Heart is also constantly fluctuating and changing. There will be stability achieved by reaching this state of anurag. When you give your heart to, or you start desiring the one that is not changing, then stability starts seeping into your entire being. और वो मन के थ्रू बुद्धि में आ सकती है. Does that make sense? Do you understand? तो हमारे गुरुजनों ने, बड़ों ने अनुराग की बात की. अनुराग बड़ा पॉपुलर नेम भी है, हमारी जनरेशन में बड़ा पॉपुलर नेम था. आजकल लोग और भी क्यूट क्यूट नेम रखते हैं, बट अनुराग, to love somebody or an entity that is unchanging. कहाँ से पहुंची मैं राग पे? Alright. खुशबू, any thoughts बेटा? हाँ बेटा. नमस्ते दीदी. नमस्ते. मैं पूरा हफ्ता, ये 2 हफ्ते में यही सोच रही थी कि what can I do to create legacy? I'm तो nowhere close to L of legacy also. So what am I going to leave? What am I going to do? So how can I rise above? So I बेटा, was when you thinking about focus this. now, when you focus on yourself or about yourself, only think about what you're leaving with, not leaving behind. Okay. When you think about yourself, only be worried about what you're leaving with. Don't worry about what you're leaving behind. कौन तुम्हें याद करता है, नहीं करता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. कितने पोएट्स आए, कितने राइटर्स आए, कितने सिंगर्स आए, कितने किंग्स आए, कितनी क्वींस आई, सब खत्म हो जाता है बेटा, कोई नहीं रहता. सिर्फ फोकस उस पे करो कि तुम क्या लेके जा रहे हो साथ में, क्योंकि तुम्हें अपने साथ रहना है.
समझी गुड़िया? Yes, Didi. Don't think about your legacy. Think about your assets. Don't worry about what you're going to leave behind. Worry about what you're going to take with you. जी दीदी. कि अगर आज, if today is your last day, if this moment is your last moment, do you have something concrete that you can carry with you? हाँ. That is the most important. Because सांस का क्या पता है? आज सुबह मैं मैट पे गई, फेंट हो गई. 2 मिनट का मुझे कुछ ख्याल नहीं है क्या हुआ. अगर उस समय चली भी जाती, तो भी ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ रह गया, ये करना, वो करना, वो करना. अरे नाम नहीं किया, अरे काम नहीं किया. किस मोमेंट पे शरीर से आपका नाता टूटता है, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता. कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है. Nobody can tell you कि this will not be the moment because you're healthy, because you are practicing, because you are breathing well, because you're eating well. It can happen to you at any time. Are you prepared for it? Do you have something to carry with you? Or do you have tons of weight that you have to like still carry with you? Have you changed your attitudes? Have you changed your vasanas? Is that change going with you? Were you able to practice? Are you taking your practice with you? किसी का लेना देना तो नहीं है कुछ. लोन तो लेना ही नहीं चाहिए इसलिए. So please think about what you can take with you. Don't think about what you will leave behind. क्या कपड़ा लत्ता क्या छोड़ के जाओगे तुम. भरी भरी अलमारियां रह जाती हैं जिंदा आदमी की. जिंदा आदमी, अभी तुम सारे लोग अपनी अलमारी खोल के देखो, 70% कपड़े उसमें से पहन नहीं रहे हो. दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट. अपनी कबर्ड्स किचन की खोल के देख लो, उसमें से भी 70% आप यूज नहीं कर रहे हो. लिनन कपबोर्ड खोल के देख लो, उसमें से भी 70% यूज नहीं हो रहा होगा. हम तो होर्डर्स ही हैं. ये बकवास होर्ड करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. खाली करो, खाली. चलो. So everybody, you remember what I talked about last time? I said that we need to pay a lot of attention to small little nuances in the story. राजा दशरथ जैसे राजा, इंद्र के दरबार में आते जाते राजा, विश्वामित्र जैसे गुरु उनके, वशिष्ठ जैसे गुरु. मतलब ये लोग सब राजा दशरथ के लिए सब थे वहां पर. एक पुत्री हुई उनकी. He had one daughter. What was the name? Neha, what was his daughter's name? पता नहीं. Huh? नहीं, पता नहीं.
सीता मैया सीता मैं दशरथ की बात कर रही हूँ, सीता मैया कहाँ से आ गई? बहन अच्छा बनाओगे तुम राम जी की? नहीं नहीं सॉरी नहीं सॉरी आई एम सॉरी आई डोंट नो लेट मी से आई डोंट नो नहीं पता मुझे पर्सपेक्टिव रखो, पर्सपेक्टिव। रुचि का चीकू बता। नहीं तान्या पूरा दीदी गूगल कर रही थी, क्या थी? गूगल चेक कर रही है, I was just trying. राजा दशरथ की एक पुत्री थी कौशल्या माता के साथ। he had one daughter, नाम था शांता, and she was extremely accomplished in the art of war, the art of administration, the very accomplished daughter. एक पुत्री थी, उस एक पुत्री का उन्होंने दान कर दिया। उस दान के बेसिस पे जो उनका यज्ञ हुआ, वो दान करने से उनका यज्ञ हुआ। जो पुत्रों के लिए यज्ञ हुआ, पुत्री का दान करके उन्होंने यज्ञ किया। और विस्तार से सुनाऊंगी कभी और दोबारा कहानी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि राजा दशरथ बहुत इलस्ट्रियस राजा थे। उनको सोचने की जरूरत नहीं थी कि बच्चा आया है, कोई बड़ी बात नहीं थी। जो थोड़े बहुत कर्म उन्होंने इकट्ठे किए थे, उनसे एक पुत्री तो हुई। पुत्री को भी दान किसको किया? सन्यासी को दान किया, ऋषि को दान किया। वो ऋषि पत्नी बन गई, उसके बाद राजकुमारी नहीं रही। तो जो थोड़े बहुत कर्म थे वो भी खत्म कर दिए। और इतना बड़ा त्याग करने के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जबकि कोई बड़ी चीज नहीं थी, एक छोटा मोटा बच्चा तो हो ही जाता, कोई बड़ी चीज नहीं थी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डीपली थिंक अबाउट कि ये एक एक नुआंस कि इतने बड़े राजा पुत्री नहीं हुई। सेम थिंग विद जनक जी, इतने बड़े राजा पुत्री नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उनको तो पुत्री भी नहीं हुई। यहाँ अग्नि से भगवान पैदा हुए, वहां धरती से माता पैदा। Like very small nuances. If you deeply think about these little, you know the story. The story is not a mystery. The small nuances. And you deeply start thinking about it, it'll really become very beautiful for you. बहुत कहानी बहुत सुंदर हो जाएगी आपके लिए। जो कभी नहीं सोचा था वो भी समझ में आने लगे। जैसे राजा हरिश्चंद्र की क्या कहानी है? राजा हरिश्चंद्र हुए, उनके पुत्र की तो मैंने बताई थी कि इंद्र पीछे पड़े हुए थे, पिछली बार बताई थी। रघुवंश में, पूरे ये सूर्यवंश में 2 बार ऋषि विश्वामित्र आए। पूरे सूर्यवंश में खाली 2 बार विश्वामित्र राजा के पास आए। पहली बार आए थे राजा हरिश्चंद्र के पास। राजा हरिश्चंद्र के पास महर्षि विश्वामित्र पधारे
उन्होंने बोला कि महाराज, कल रात आप मेरे स्वप्न में आए थे। यू केम इन माई ड्रीम एंड आपने मुझे अपना राज्य देने का वचन दिया था। आपने सपने में मुझे अपना राज्य देने का वचन दिया था। तो महाराज उठ के तुरंत खड़े हो गए और पूरा राज्य महर्षि विश्वामित्र को तुरंत ही दे दिया। वचन के लिए तो कुछ भी करेंगे, ये रघुवंशी हैं, तो तुरंत पूरा राज्य दे दिया। पर दान देने के लिए कुछ नियम होते हैं। जब आप किसी को दान देते हैं, जैसे हमने गौ दान किया, आजकल तो होता नहीं है, पर कुछ जब हम कोई चीज दान करते हैं तो एक तो दान होता है जो वस्तु हमने दान की, और दान करने के साथ जो ब्राह्मण है उसको भी गुरु दक्षिणा देनी पड़ती। दान जिसने दिलवाया है ना, गुरु दक्षिणा उसको देनी पड़ती, जो उसका प्रोसेस करता है। जैसे शादी में क्या करते हैं, हम पंडित को पैसा देते हैं ना, वो कन्या दान करा रहा है तो उसकी दक्षिणा देनी पड़ेगी उसको। तो दान करने के लिए दान की वस्तु और दक्षिणा दोनों चाहिए। महाराज ने दान तो कर दिया राज्य, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। बोला बाकी दक्षिणा क्या होगी? तो बोले अच्छा ठीक है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपको बाकी दक्षिणा देते हैं। गए, राज्य तो दे दिया था, राज्य से बाहर गए, दूसरे राज्य में कोई पुराने राजा को कोई अपना नौकर भी ना रखे, डर के मारे। राजा नौकर थोड़ी, नौकरी मतलब इसको हम आदेश ही कैसे दे, नौकर ही ना रखे। तो खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को तो बेच दिया, एक साहूकार को बेच दिया दासत्व में। उसके पैसे ले जाके ऋषि विश्वामित्र को दिए। पूरे नहीं हुए, पूरे नहीं हुए तो फिर अपने आप को भी बेच दिया। किसको बेचा? कहाँ है शमशान। हरिश्चंद्र घाट? किधर है बेटा हरिश्चंद्र घाट? बनारस। वाराणसी। वाराणसी में, अब ये सोचिए अयोध्या से वाराणसी ज्यादा दूर नहीं है ना? सो यू थिंक अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इट। अयोध्या के राजा वाराणसी में आके अपनी रानी और राजकुमार को बेच दिया। उसके बाद चांडाल को अपने आप को बेच दिया। नीच का काम है, कोई बात नहीं। उससे उसकी जो दक्षिणा की पूर्ति हुई, दान पूरा हुआ। दान पूरा करने के बाद जब वो चांडाल का काम कर रहे थे तो चांडाल की रिक्वायरमेंट थी, जो लोग अग्नि लगाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसका कुछ पैसा लेना होता है। तो उनका पुत्र मर गया। पता कैसे चला? क्योंकि वाइफ लेके आई डेड बॉडी। कहाँ लेके आएगी डेड बॉडी? सबसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, पहले तो आप शमशान घाट जाते हो। सो शमशान घाट में पत्नी लेके आई और पैसे ही नहीं थे। चांडाल का पैसा लिए बिना वो अपने बेटे को भी अग्नि देने को तैयार नहीं। क्या बोल रही शालिनी? नहीं, मैं याद करी थी स्टोरी की, वाइफ ने फिर अपने कपड़े खोले देने के लिए। क्या अग्नि तो देने को तैयार नहीं, पूरे कफन लगता है, कफन तो उन्होंने अपनी साड़ी दे दी कफन के लिए। पर उसके बाद एक कपड़ा तो चाहिए ना ढकने के लिए डेड बॉडी, वो तो साड़ी दे दी। उसके बाद खैर अल्टीमेटली ये इतना बड़ा त्याग वगैरह करके
इंद्रदेव खुद नीचे आ गए कि आप चलो हमारे साथ, इंद्रलोक चलो, मना कर दिया। क्या बोले राजा हरिश्चंद्र पता है आपको? नहीं, इंद्रलोक मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं राजा हूं। राजधर्म कहता है कि आई हैव टू प्रोवाइड फॉर माय राज्य। तो मेरे जितने राज्य में लोग हैं, ये सब अगर इंद्र लोग जा सकते हैं तो ही मैं इनके साथ जाऊं, वरना मैं नहीं जाऊं। तो क्या, जो हम पहले बात कर रहे थे धर्म की, ये लिनिएज है। हमें तो इतना सा कुछ हो जाए, झूठ बोलने में 2 मिनट नहीं लगता, कॉम्प्रोमाइज करने में 2 मिनट नहीं लगता, थोड़ा सा भी हल्की सी भी चोट हो, ऊपर नीचे हो जाए, एकदम वी आर रेडी। वो तो अच्छा हुआ कोई टेस्ट नहीं करता रोज की रोज, वरना रोज हम झूठे मक्कार साबित हो। भगवान की बड़ी दया है कि रोज कोई टेस्ट करने नहीं आता, पर जिस दिन आता उस दिन हम फेल ही होते हैं, पास तो होते नहीं एक बार भी। तो ये राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र जी आए और पूरा राज्य लेके गए, और ये उनकी दशा हो गई। दूसरी बार विश्वामित्र जी आए रामचंद्र जी को लेने के लिए, तो दशरथ महाराज की हालत खराब। एक बार आए थे, पूरा राज्य उन्होंने पहले ही बिठा दिया सिंहासन पे, आप बैठो विराजो। फिर मांग लिए भगवान, विश्वामित्र ने भगवान मांग लिए। दशरथ महाराज की हालत खैर नहीं, एनीवेज प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय बोलते हैं कि तो दिस इज कम्युनल प्रॉपर्टी, आई कांट इवन गिव भगवान। मैं राम जी को दे ही नहीं सकता, दो तो उसको जो मेरा हो, मेरा तो है ही नहीं, वो तो यज्ञ से प्राप्त हुआ है, मैं देने की अथॉरिटी ही नहीं है, ये तो पूरे संसार के हैं। मना कर दिया उन्होंने, मैं तो अथॉराइज्ड ही नहीं हूँ, मैं तो कमिटी मेंबर हूँ, ये पूरी कमिटी है एक। फिर गुरु वशिष्ठ ने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया, पता है क्या सोल्यूशन दिया? डज एनीबॉडी नो? नो? बहुत लाइक छोटे छोटे नुआंसेस हैं, दिस इज लाइक वेरी स्मॉल कॉन्वर्सेशन। हमें सिर्फ इतना ही याद रहता है कि दशरथ जी ने मना कर दिया। क्यों मना किया? उन्होंने बोला मैं ऑथराइज्ड ही नहीं हूँ, मैं आपको कुछ दूं तो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। भगवान मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पुत्र ही नहीं है, ये तो यज्ञ से आया है, मैं दे ही नहीं सकता, कम्युनल प्रॉपर्टी है। राज्य राजा का पुत्र राज्य के लिए आया है, तो कम्युनल प्रॉपर्टी। ये बोला उन्होंने, ऐसे नहीं कि रोते पीटते मना कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला महाराज, आप पुत्र नहीं दे सकते, पिता का पद तो दे सकते हो। आप इनको कमिटी में से अपना अपना पोजीशन दे दो, विश्वामित्र जी को आप पुत्र मत दो, अपनी पोस्ट दे दो, आप इनको कमिटी मेंबर हो ना आप भी, आप इनको अपनी मेंबरशिप दे दो, वो तो आप दे सकते हो, वो तो आपकी है। हाँ, ये राज सिंहासन पे तो आपने बिठा ही दिया, पद तो दे ही दिया, आप इनको पिता का पद भी दे दो। पिता का पद दिया, तब महाराज से बिना पूछे राजकुमारों को दोनों को लेके
महर्षि विश्वामित्र जनकपुरी में चले गए स्वयंवर के लिए। पिता का पद था उनके पास, वरना नहीं जा सकते थे। Does that make sense? Small nuances, very, very small nuances. And as you start to read and understand, not just the story, because the story you guys know, then you can appreciate like little things there. क्या बहुत टाइम हो गया, और आज डिफरेंट डे भी था। सो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र कहानी सुनी, इसको एक बार फिर से गूगल कर लेना बेटा, जो गूगल, read it from other sources, because you'll hear some different versions of it. But generally दो चीज के बहुत बड़े एग्जाम्पल थे राजा हरिश्चंद्र। एक तो वचन पालन, के सपने में भी दिया हुआ वचन वो पूरा करने के लिए पूरा राज्य दे दिया, और दूसरा राज्य धर्म का पालन, कि स्वर्ग भी मिल रहा हो राजा को तो अकेले नहीं लेना चाहिए। और उस समय एक साथ महाराज के साथ पूरे अवधवासी सब स्वर्ग सिधारे थे। फिर अगर आप भागीरथी की कहानी सुनेंगे तो उसमें तपस्या, हमने कितनी बार तो ये कहानी तपस्या ही तपस्या, कितनी तपस्या की, जंगल में जाने से डरे ही नहीं, तपस्या ही तपस्या, राज छोड़ के तपस्या की उन्होंने। जब तक गंगा माता धरती पे नहीं आ गई तब तक तपस्या की। सो इस बार का होमवर्क सिर्फ इतना ही है, जो कहानी बताई गई भागीरथी महाराज की, उस कहानी को आप गूगल पे अदर सोर्सेस से वीडियोस में एक बार दोबारा से ठीक तरीके से देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और उसके नुआंसेस हम अगली बार डिस्कस करेंगे। Generally, these are the two things that were established in that generation. एक तो वचन पालन की परिकाष्ठा थी, that was the ultimate in being able to follow your word or keep your word. And दूसरी राज धर्म की परिकाष्ठा, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के लिए क्या करना चाहिए राजा को। ultimate example, that ancestor of Suryavansh. So please read the story. There are many versions. Generally, I have explained it to you, but read the story one more time and then we'll discuss it. And please read it with an open mind so that you can appreciate the nuances in the story. श्वेता, आपने जो अभी एक बात बताई है, उनकी बहन थी रामचंद्र जी की, शांता, और उनका दान किया था उन्होंने ताकि जो भी उनके कर्म थे वो छूट गए। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग जैसे हमारे घर पे बेटी पैदा होती है तो इसका मतलब यही है कि बेटी का आप दान करें किसी अच्छी जगह पर, ताकि आप मतलब हमारे कर्म कट सकते हैं अगर नहीं, उसको सही से कन्यादान तो हर वो कोई करें। करता है ना चिकू, हाँ, कन्यादान तो हर कोई करता है, वो तो दान का अगर महत्व इसका है। मतलब ये है कि भाई ये दान तो बहुत ही बड़ा दान होता है, तो हमारे समाज में इतना लड़कियों को इतना वो क्यों समझना शुरू कर दिया? वो तो नहीं, है समाज ना? कभी कभी उल्टा सोचता है, बट हाँ, मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कन्यादान एंड the dan that Maharaj Dashrath did. They are two different things. उन्होंने जब अपनी पुत्री का दान किया
तो अब उनको पता नहीं था कि वो ऋषि शादी भी कर लेंगे। कन्यादान नहीं किया उन्होंने। कन्यादान में तो फिर लड़की वापस आ सकती, उन्होंने तो दान किया। वो तो वैलिडेट हो गया, उसके बाद ठीक है। और किसको दान किया? राजा की पुत्री दासी नहीं बन सकती। उन्होंने एक ऋषि को दासी के रूप में दान किया, दासत्व में दान किया। वो तो बाद में उन्होंने शादी कर ली, वो बात अलग है। तो बहुत बड़ा त्याग था उस समय। रिश्ता नहीं उन्होंने एस्टेब्लिश किया। हम जानते नहीं है कि कौन इनके ये समधी कौन है, हम जानते हैं क्या? मतलब है, हम जानते हैं स्टोरी में तो है। बट ऐसा कोई समधी का, जैसे राजा जनक के साथ समधी का नाता है। जब महाराज दशरथ चले जाते हैं, स्वर्ग सिधारते हैं, तो महाराजा जनक आते हैं, भरत भी आते हैं, उधर से महाराजा जनक आते हैं, और वो सब मिलते हैं वहां पे जंगल में राम जी के पास, है ना? तो समधी का कोई नाता नहीं है वहां पे। और जहां तक समाज की बात है, वो तो एक बहुत अलग, वो तो हर चीज समाज का क्या है। बिल्कुल। अच्छा, उनका मतलब दान किया था, कन्यादान नहीं किया। कन्यादान तो हर कोई करता है, हम्म उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने तो दान ही कर दिया था पुत्री को। और इतनी, मतलब अगेन आई विल try, I would want you to pay attention to the fact that this was a very illustrious kingdom, and the only daughter of the king would have been very pampered, and then to give her in the service of, एंड हम महाराज दशरथ का मोह भी जानते हैं। बच्चों के लिए मोह कितना है उनको, खाली राम जी के लिए ऐसा नहीं है। जो जो कैरेक्टर हमने देखा कि पुत्र वियोग में उसने प्राण त्याग दिए, 14 वर्ष वेट नहीं कर पाया, तो उसको अपनी बेटी से प्यार एक पिता को अपनी बेटी से प्यार नहीं होगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक मतलब तरह से उन्होंने अपनी सबसे प्रिय चीज जो उनके पास थी वो दान दी थी, जो भी मतलब जो सबसे प्रिय था उनका। उस सैक्रिफाइस की वजह से उनको राम जी मिले, तो इसलिए इतने प्रिय थे, नॉट बिकॉज राम जी अच्छे थे और भगवान थे। तो जो उसके लिए सैक्रिफाइस दिया था वो ही इतना बड़ा था कि you see the value increase so much, so many more times. So like small nuances, उसको अगर आप डीपली सोचोगे ना, तब आपको समझ में आएगा क्या था, क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो कहानी सोचोगे तो कहानी तो ठीक है आगे। एक राजा थे, राजा ने अपनी पुत्री दान करी, फिर एक यज्ञ हुआ, फिर यज्ञ से खीर का कटोरा निकला, फिर खीर कटोरा 3 रानियों ने खाया, 4 पुत्र पैदा हो गए। और सेम चीज जैसे आपने बताई कि जो लीनिएज है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उनकी श्री रामचंद्र जी की जो लीनिएज थी वो तो बहुत तपस्या तपस्या तपस्या, मतलब बहुत अच्छे ऊपर थे। तो शायद इसीलिए खुद भगवान को आना पड़ा होगा कि अब और क्या आ सकता है इनके पास इस सही है। वंश में। बात तो सही है। So again, I will just still request everybody to think about everything very deeply. Each character, each instance, just let's not take it like a story. It's not a story. Just deeply think about it. Then you'll be able to appreciate it. वरना story तो बड़ी simple है, simplified story.
हरिश्चंद्र के पास एक ऋषि आए, ऋषि ने बोला स्वप्ने में मैंने देखा है तुमने राजदान कर दिया, वो चले गए राज छोड़ के। उसको कॉन्टेक्स्ट में भी ले, ए आपके घर का जो कुकर है ना वो भी आप दान ना करें। अगर कोई आके बोले कि सपने में मैंने सोचा है कि कुकर आपने मुझे दान कर सीरियसली, वी हैव सो मच अटैचमेंट। मैं सोचूंगी मैंने तो स्पेशली स्टील का, एक तो पहले स्टेनलेस स्टील का कुकर खरीदा बड़ी मुश्किल से अपने लिए, अब इसको दान कर दूं। Just few days ago, I burnt milk in my saucepan. The saucepan was this, nice saucepan. And my maid was very happy because that was burnt to cinders. It couldn't be salvaged. And look at my attachment. She's very happy. दीदी ये दे दो, मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं नहीं, देना नहीं है, देना नहीं। I went on Amazon, I researched, I got an oven cleaner, I waited for 7 days. She was still eyeing the saucepan, and I was still waiting for the Amazon delivery to happen. Then I sprayed the oven spray, cleaned it up, and I was like extremely happy. It cleaned up nice, and I still have my saucepan. See? कितना मोह है हमें एक saucepan से. Or maybe you guys are better. I'm just like, I'm like that. तो उन्होंने सभी ऐसे हैं। राज्य पूरा दान कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि उस क्या मतलब है उसका। कहानी ही सुन सकते हैं हम ये, क्योंकि ये इमेजिन करने की कैपेसिटी नहीं है। इट्स लाइक स्टैंडिंग ऑन द व्हाट इज दैट कैनियन, ग्रैंड कैनियन, standing on Grand Canyon, the rim of the Grand Canyon, and you're looks like space, man. You can't imagine how big and deep and wide it is. It is impossible to fathom it. So when you hear anything in the story, even the smallest thing, don't look at it as a story. Try to think about it yourself. Deeply think about it. Then you'll be able to appreciate it. इसलिए वही रामायण की वही कहानी लोग पूरी जिंदगी गाते रहते हैं। और तुलसीदास जी ने बोला, हजारों बार मेरे गुरु ने सुनाई, हजारों बार मैंने सुनी, और मेरी मूड बुद्धि में कुछ नहीं समाई। मेक सेंस नो? मेरी भी मूड बुद्धि में नहीं समाती, क्योंकि बहुत ही बड़ा है सब, हर चीज बहुत ही ज्यादा। इट्स too big for me to even imagine, too big for you to even imagine. So जितना भी सुनो देखो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको use empathy there. Try and figure it with empathy. ना महाराजा हरिश्चंद्र का दान हम कैसे समझ पाएंगे? पहले एक चीज दान करो, तब समझ में आएगा। एक अपनी चीज कोई दान करो, तब ये हरिश्चंद्र जी की स्टोरी समझ में आएगी आपको। इस हफ्ते में एक दान करना उस चीज का जो तुम्हें प्यारी हो, और बिना क्रेडिट लिए दान कर देना। एक तो वो 70% जो बेकार है उसका कुछ बोझ भी कम होगा, और ये स्टोरी थोड़ी समझ में भी आएगी। बेकार चीज को दान नहीं करनी ना, अपनी सबसे प्यारी करनी है। प्यारी तो सारी है, वो 100% प्यारी है तुम्हें, वरना रखी थोड़ी होती। कंडीशंस भी ऐसी होनी चाहिए ना दान में। ऐसी चीज दान करो जो बहुत प्यारी हो, ऐसी चीज दान करो जो रिप्लेसेबल ना हो, इरिप्लेसेबल हो, दोबारा ना मिले तुम्हें। मतलब कि उससे मोह ही पूरा खत्म हो जाए। खैर, अगर कर सकते तो करना, नहीं कर सकते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पूरी उम्र पड़ी है। हैव योर होल लाइफ टू ट्राई दिस आउट।
You can even try it in your fag end, like, 70s, when you can't wear everything and can't cook in the kitchen and you don't need your utensils. So no worries about it. All right, guys. Have a nice week. And hopefully I'll see you next week. God only has some strange Maya. He decides when you're going to have a class. So I'll leave it to him. I'll try to show up as much as I can. You try to show up as much as you can, and we'll see how far we can get with this. Yeah. Namaste. Namaste, नमस्ते जी।